बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और टॉपिक जो सीरीज है ये बेसिकली है हाउ टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स। ठीक है। अच्छा, आल्दो के हमारा ये आल्दो द टॉपिक इज बेसिकली टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स, बट द टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस may include and may be useful for non-salaried persons as well. So, however, our focus will be on salaried individuals. A large number of our clients are salaried individuals, and when we prepare tax returns of those salaried individuals, so there could be a number of areas where we can help them reduce their tax burden legally while remaining within the parameters of law. So tax planning is a right of every taxpayer, and we should help our clients use this right appropriately. First of all, let me start with basics of salary taxation. Salary is taxable on receipt basis, except areas as discussed later in this presentation. We will discuss areas later. However, it is important to note that the salary is taxation on receipt basis. Salary is not taxable on receivable basis. For example, if a person receives a salary during the year for 11 months for any reasons, for example, his June salary is delayed and his June salary is paid in the next year. However, last year he was not paid the June salary in the current year. So he will be taxed only for 11 months salary, and in the next year, he will be taxed for 13 months salary if his salary for received during the year is for the period of 13 months. तो 11 महीने की सैलरी पर टैक्स लगेगा या 13 महीने की सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा. But taxation of salary is on receipt basis. It is not on accrual basis of accounting. जब भी मैं पढ़ाता हूं तो अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भाई वो एक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया था कि जनाब आपकी सैलरी की जो है वो रिसीट आपने उसको अनरिसीव्ड सैलरी को आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाया, डिक्लेयर नहीं किया. वो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिसीजन है. लेकिन जो टैक्सेशन है वो याद रखें कि वो जो सैलरी थी वो टैक्सेबल सैलरी नहीं थी, और यहाँ पर भी रिसीट बेसिस के ऊपर सैलरी टैक्स होगी. सैलरी इज नॉट टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दिस इज अ प्राइमरी थिंग विच शुड बी रिमेंबर्ड व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग रिटर्न ऑफ अ सैलरीड इंडिविजुअल. Salary, what is included in the salary? Salary includes the amount of any allowance by whatever named called provided by an employer to an employee. Salary includes the amount of any allowance provided by an employer to employee. What कोई benefit, कोई cash allowance जो employer अपने employee को देगा, whether it is entertainment allowance, traveling allowance, daily allowance, whatever allowance, it is included in the definition of salary, but shall not include any allowance solely expended in the performance of employees duties of employment. यानी कोई ऐसा अलाउंस जो एम्प्लॉई को इसलिए दिया जा रहा है कि वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के लिए एक्सपेंडेड, विच इज फॉर द सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो वो अलाउंस सैलरी की डेफिनेशन में ही शामिल नहीं है. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज है, पहले तो ये कि हर किस्म का अलाउंस, एवरी टाइप ऑफ अलाउंस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, but then a specific allowance which is for the performance of duties. What are those allowances? Interestingly, we have a decision of Supreme Sindh High Court, a very recent decision which is reported as 122 Text 187. I recommend that all of you read this decision, which discusses judicial allowance and special judicial allowance. And the Honorable Sindh High Court declared that the judicial allowance and special judicial allowance is not included in the definition of salary because it is an allowance solely expended in the performance of employees duties of employment.
The Honorable Sindh High Court has relied upon previous decisions of Peshawar and Lahore High Courts, which earlier declared such allowances as not included in the definition of salary. So a few extracts from that decision. 122 text 187, the Sindh High Court reproduced para 12 from Peshawar High Court decision. In the Sindh High Court decision, there is a decision reproduced from the Peshawar High Court, the para 12 of Peshawar High Court decision. The dicta of the above judgment clearly reflects that the special judicial allowance granted to the petitioners was in appreciation of their performance of duties and thus would not fall within the scope of salary and thereby not chargeable to income tax under the charging subsection of section 12 of the ordinance. अब यहाँ पर जो कोर्ट ने अल्फाज यूज किए हैं उनको जरा आप देखें, कोर्ट ने अल्फाज क्या यूज किए हैं? स्पेशल जुडिशियल अलाउंस granted to the petitioners was in appreciation of their performance of duties. Was in appreciation of their performance of duties. ये इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट ने वहां पर अच्छा, इससे पहले वाले पैराग्राफ्स में कोर्ट ने एक्सपेंडेड के वर्ड को डिस्कस किया है. मैं अगेन आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाता हूं जहां पर ये अल्फाज है. लॉ के अल्फाज क्या है? Any allowance solely expended in the performance of employees duties. कोर्ट ने यहां पर अल्फाज क्या यूज किए हुए हैं? कोर्ट ने कहा है in appreciation of their performance of duties. तो solely expended और appreciation of the performance of duties, इन दोनों बात को बजाहिर कोर्ट ने इक्वेट किया है. The court has equated these two things, which is very interesting. However, तो ये डिसीजन हमारे पास कोर्ट का मौजूद है और इस डिसीजन को देखा जा सकता है कि हाउ टू बेस्ट यूज दिस जजमेंट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ स्पेसिफिक टैक्स पेयर. किस तरह से जजमेंट आपके क्लाइंट के ऊपर अप्लाई होती है. Then in the Sindh High Court reproduces another para from Peshawar High Court judgment, para 14. The bare reading, I'm sorry if it is from Peshawar High Court judgment or Lahore High Court judgment, but it is reproduced from a High Court judgment in the Sindh High Court judgment. The bare reading of the aforementioned entry provides that the scope of allowances or benefits mentioned therein supplements the clear exclusion provided under clause C of subsection 2 of section 12 of the ordinance. जो exclusion अभी हम पढ़ रहे हैं. These are allowances which are solely granted for the better performance of the duties of officers. अब यहाँ पर कोर्ट ने पैरा 12 में अल्फाज इस्तेमाल किए थे appreciation of performance. यहाँ पर कोर्ट ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं solely granted for the better performance of the duties. तो कोर्ट ने जो solely expended in the performance of duties के अल्फाज थे, जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, वापस मैं उस शीट पे दोबारा आ रहा हूँ. लॉ के अल्फाज थे अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज. तो इन अल्फाज को कोर्ट ने एक जगह इस तरह से पढ़ा, इन एप्रिसिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, और एक जगह पर कोर्ट ने इस तरह लिखा सोली ग्रांटेड फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज. तो कोर्ट ने जो सोली एक्सपेंडेड का वर्ड है उसको काफी वसी इंटरप्रिटेशन दी है, काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दी है जब जुडिशियल अलाउंस और स्पेशल जुडिशियल अलाउंस की एग्जेम्पशन की बात आई. फिर सिंध हाई कोर्ट का अपना जो डिसीजन है उसका पैरा 10 अगर आप देखें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है. लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स, लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट्स एफबीआर वाले की बात हो रही है. Learned counsel for the respondents has also not been able to assist this court as to how the amount of judicial allowance and special judicial allowance does not fall within the category of allowances covered within the exclusion of Income Tax Ordinance 2001
nor could place on record any material to show that such amount is expended by the employee for a purpose other than performance of the employee's duties of employment. Interestingly, सिंध हाई कोर्ट ने ये जिम्मेदारी एक तरह से एफबीआर पे शिफ्ट की, रिस्पोंडेंट्स के ऊपर शिफ्ट की कि वो कोर्ट को असिस्ट करें और वो कोर्ट को बताएं कि ये अलाउंस इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई कि वो ये बताएं कि जो अमाउंट एम्प्लॉई ने एक्सपेंड की है इट वाज फॉर अ पर्पस अदर देन फॉर ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, अदर देन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉई की जिम्मेदारी नहीं लगाई, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं लगाई कि वो साबित करे कि इट इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटीज। कोर्ट ने कहा एफबीआर ये साबित करे। तो हमारे पास इस डिसीजन से तीन बड़े इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने नजर आ रही हैं। एक ये कि अगर अलाउंस जो है इन एप्रिसिएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज हो तो वो भी सैलरी की डेफिनेशन से बाहर जा सकता है। अगर अलाउंस सोली ग्रांटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज हो तो वो भी सैलरी की डेफिनेशन से बाहर जा सकता है। और ये साबित करना कि अलाउंस जो है इट वाज एक्सपेंडेड फॉर अ पर्पस अदर देन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी एफबीआर की है। तो इन तीन डिसीजंस को, इन तीन चीजों को लेकर तो अब इन डिसीजन को सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, यहाँ ये हमारे तीन सूबे, तीन अदालतें जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जुडिशियल अलाउंस और स्पेशल जुडिशियल अलाउंस वो सैलरी की डेफिनेशन में शामिल ही नहीं है, और उसके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए अपने डिसीजन में। तो इन पैरामीटर्स को आप अपने क्लाइंट्स को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर यू। तो सैलरी मैं अभी रिपीट करता हूँ जहां से मैंने शुरू किया। पहली बात मैंने की कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। दूसरी बात मैंने की कि सैलरी includes amount of any allowance but it does not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duties of employment। और वो कौन सा अलाउंस है जो solely expended in the performance of employees duties of employment है, वो अलाउंस हमने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स के नतीजे में डिस्कस किया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, उसके बाद मैं अगली स्लाइड्स के ऊपर जाता हूँ। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ही कैन रेज हिज हैंड्स। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। अब उसके बाद ये तो अलाउंस की बातें थी, फिर उसके बाद कोर्ट ये फिर उसके बाद लॉ ये कहता है रीइंबर्समेंट्स, यानी एक तो एम्प्लॉयर से सैलरी के साथ कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, उन्होंने कहा जी सारे टैक्सेबल है सिवाय जो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउंस मिल रहा हो। और फिर उसके बाद रीइंबर्समेंट्स की बात आ गई। रीइंबर्समेंट्स में लॉ सेज सैलरी इंक्लूड्स एनी एक्सपेंडिचर incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer. Salary includes any expenditure incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer। ठीक है, यानी फर्ज किया अगर एम्प्लॉय के अपने घर का बिल है, अगर कोई एम्प्लॉय के अपने बिल है जो उसका बच्चों की एजुकेशन की फीसें हैं और कोई फीसें हैं जो कि एम्प्लॉय पे करता है और एम्प्लॉयर उसे रीइंबर्स कर देता है, यानी कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो ये एम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट हो गया ना। तो उस बेनिफिट को, उस रीइंबर्समेंट को लॉ कहता है कि दिस बेनिफिट और रीइंबर्समेंट इज टैक्सेबल। फिर आगे क्या कहता है, अदर देन एक्सपेंडिचर incurred on behalf of the employer in the performance of employees duties of employment, other than expenditure incurred on behalf of employer in the performance of employees duties of employment। यानी फर्ज किया मैंने एक एम्प्लॉय को कहा कि यार आप जाके, या कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि आप ये जाके दफ्तर का बिजली का बिल जमा करा दो,
और वापस आके इसके रिइंबर्समेंट करवा लेना, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, इसका एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं है, तो इस किस्म की रिइंबर्समेंट सैलरी की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई कि सैलरी की डेफिनेशन में हर किस्म के अलाउंस और हर किस्म की रिइंबर्समेंट शामिल है, सिवाय ऐसे अलाउंसेस के और ऐसी रिइंबर्समेंट्स के जो कि उसकी अपनी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इसको डिस्टिंग्विश करने का मकसद है, यहाँ पर जो लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई सैलरी में हर वो चीज शामिल होगी जिससे एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा होगा। अगर वो अलाउंस या वो जो रिम्बर्समेंट है एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं दे रही, बल्कि उसकी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को असिस्ट करने के लिए वो अलाउंस या रिम्बर्समेंट आ रही है, तो फिर वो सैलरी की डेफिनेशन में सिरे से शामिल ही नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन लिखा है, तलहा हैज रिटर्न सर इफ यू कैन प्लीज गिव एनी एग्जांपल ऑफ अलाउंस फ्रॉम आवर डे टू डे एक्टिविटीज एंड सिनेरियोज। Tala, the allowances and activities and day-to-day scenarios, previously I used to give two examples. There are generally two examples. For example, we send an employee to, say for the sake of argument, Karachi or any other city to perform some activities and pay him an allowance that from which he pays out his expenditure of travel, accommodation, etc. Now this allowance is required because he has to travel for official duties, so he's given that allowance. So that allowance should be excluded from the definition of salary. तो ये डे टू डे से एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल हो सकती है रीलोकेशन अलाउंस। मतलब हम कहते हैं कि हमारा एक एम्प्लॉई है विच इज करंटली लोकेटेड इन इस्लामाबाद, नाउ वी आर ओपनिंग एन ऑफिस इन, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कराची, and we allocate one of our employees to say that okay you go to Karachi, you go there, और आपको अब वहां पे ड्यूटीज देनी है। अब ये इस्लामाबाद से कराची उठ के जाना कोई इतना आसान नहीं है। अब वो किसी के बीवी बच्चे, एजुकेशन और ये सारी चीजें हैं, वो सारा खर्चा उसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूजुअली एक रीलोकेशन अलाउंस पे हो जाता है। तो दीज आर द टू यूजुअल एग्जांपल्स ऑफ अलाउंसेस जो कि इसमें से एक्सक्लूड होने चाहिए। हाउएवर अभी जो ये सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, इन डिसीजंस ने इस कैनवस को बहुत ज़्यादा वसी कर दिया है, इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। तो मैंने ये आप लोगों के सामने फूड फॉर थॉट रखा है अभी कि जस्ट लुक एट योर क्लाइंट्स, जस्ट लुक एट देयर अलाउंसेस एंड सी if these kind of expanded definitions, kind of expanded version of these allowances can be used for the benefit of other salaried individuals as well. I hope, Talha, I have been able to answer your question. However, if you want any further explanation, it will be a pleasure to answer. Anyone else has any question, he can raise his hand and or he can write in the chat box and I'll be pleased to answer your questions. Okay. नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक्स ऑफ सैलरी में जनरल एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देर आर obviously there are two types of benefits that are provided by the employer to an employee. These benefits are in cash benefits and then we have in kind benefits. In cash benefits are the allowances and reimbursements that we have just discussed. Among these allowances and reimbursements, there are some special treatments given by the law. Gratuity, termination benefits, areas of salary, these are the special benefits जिनके special treatment हैं, exemptions हैं, termination benefits हैं। और इसी तरह इन काइंड बेनिफिट्स के अंदर भी, इन काइंड की मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, जो अब इस सीरीज में हम आगे चल के सारे ये स्पेशल ट्रीटमेंट्स डिस्कस करेंगे, इन सारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स की डिस्कशन का मकसद ये है कि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाए, आप लोगों को ये पता लग जाए कि वो कौन सी चीजें हैं जो लॉ ने सैलरीड पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट दी हैं या लॉ ने सैलरीड पर्सन को उसमें कोई बेनिफिट दिया है, ताकि आइंदा जब आप किसी सैलरीड पर्सन की रिटर्न प्रिपेयर करें तो आप उसको प्रॉपर लॉ के अंदर रहते हुए कोई बेनिफिट पहुंचा सकें, उसकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें।
इसी तरह जो इन काइंड बेनिफिट्स हैं, मसलन किसी को गाड़ी मिल गई, किसी को घर मिल गया, किसी को लैपटॉप मिल गया, किसी को मोबाइल मिल गया, ये सारे इन काइंड बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉय शेयर्स मिल गए, तो उनके लिए भी अब अच्छा उसमें इन काइंड में दो तरह से होता है। एक तो एसेट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, या एसेट एम्प्लॉय के यूज के लिए दी जाता है। मसलन एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कहा कि जनाब ये नहीं, ये मोबाइल आपका हुआ, ये गिफ्ट के तौर पर आपको दे दिया, या एम्प्लॉयर ने कहा कि अच्छा भाई ये आपके घर के लिए ना ओवन हम दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, तो ये बेनिफिट या ट्रांसफर ऑफ एसेट में आ जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट जो है वो तो सिंपल है, आप सैलरी के अंदर शामिल कर देंगे जो भी उसकी उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू होगी। दूसरा है कि वो एसेट आप एम्प्लॉय को यूज के लिए दे रहे हैं, जैसे गाड़ी यूज के लिए दे रहे हैं, घर इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, या कोई और एसेट, मसलन आप अपने एम्प्लॉय के घर पे एसी लगवा देते हैं कि भाई जब तक एम्प्लॉय हो ये एसी तुम्हारे घर पे लगा हुआ है, छोड़ के जाओगे तो हम एसी उतार के वापस दे देंगे। नाउ यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड द एसेट टू द एम्प्लॉय, यू हैव प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय द एसेट फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट की सूरत में तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एम्प्लॉय की सैलरी में जाएगी, और अगर आप इस्तेमाल के लिए कोई एसेट एम्प्लॉय को देते हैं तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन या उस एसेट का जो फेयर मार्केट रेंट है वो एम्प्लॉय की सैलरी में शामिल होगा। उसमें भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे व्हीकल है, व्हीकल के लिए लॉ ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई किया है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इन स्लाइड्स के अंदर। इसी तरह एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कोई घर में रहने के लिए दिया हुआ है तो उसकी स्पेशल टैक्सेशन है, उसको भी हम आगे जाके इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये सैलरी टैक्सेशन आपको पढ़ने का पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इन सारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स को जान लें और इन सारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स को यूज करना सीखें अपने क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए। जस्ट टू रिकैप, अभी तक जो मैंने बात की, मैंने एक आपको बताया, मैंने कहा कि सैलरी की टैक्सेशन रिसीट बेसिस पर है। मैंने आपको बताया कि तमाम अलाउंसेस और रिम्बर्समेंट्स टैक्सेबल हैं एक्सेप्ट दोज अलाउंसेस और रिम्बर्समेंट्स विच आर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। और फिर हमने इस स्लाइड पे डिस्कस किया कि इन कैश अलाउंसेस हैं, इन कैश बेनिफिट्स हैं, इन काइंड बेनिफिट्स हैं। इन कैश बेनिफिट्स में और इन काइंड बेनिफिट्स में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि उन स्पेशल ट्रीटमेंट्स का अगर कोई बेनिफिट आपके क्लाइंट को हो सकता है तो आप उस बेनिफिट को यू कैन एक्सटेंड दैट बेनिफिट टू योर क्लाइंट। एक सैलरी की सादा सी एग्जांपल है ये जो इन काइंड एसेट के हवाले से, मिस्टर ए इज प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर, बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज 20,000 पर मंथ, वी हैव एसी उसने इस्तेमाल के लिए दिया है विच इज 1 लाख रुपए का एसी एम्प्लॉयर ने खरीदा था। डेप्रिसिएशन एसी की है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। एसी वाज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 2 years अगो। तो उसकी एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ थी, साल की सैलरी 24 लाख रुपए हो गई। इंटरटेनमेंट अलाउंस 2,40,000 रुपए 20,000 रुपए पर मंथ था। एसी एम्प्लॉयर ने दिया था 2 साल पहले। अब एसी की कॉस्ट तो थी 1 लाख रुपया, लेकिन आप चूंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे एम्प्लॉयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी होगी। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करें पहले साल की डेप्रिसिएशन, 9,000 माइनस करें दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। इसके ऊपर 10% आप चार्ज करें तो आपके पास 8,100 रुपये आ जाएगा, जो उसकी सैलरी का हिस्सा बनना चाहिए। इस एग्जाम्पल को एक दफ़ा सारे गौर से देखें, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ, आप इसको रीड करें और फिर मुझसे कोई क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल को समझने के लिए तो मुझसे पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नेक्स्ट मेरे पास कुछ और अलाउंसेज हैं, मैं इस सारी स्लाइड को रीड नहीं करूंगा। बस आपको सिर्फ मसलन कोई एम्प्लॉई है, उसे कोई ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, कोई उसे टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई प्रोविडेंट फंड से पैसे मिल रहे हैं, कोई उसे हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है, तो ये सारी की सारी पेमेंट्स, ये सारी की सारी पेमेंट्स एम्प्लॉय की सैलरी की डेफिनेशन में शामिल है। हाँ,
इसके ऊपर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कुछ पेमेंट्स की स्पेशल ट्रीटमेंट है। हाउएवर अभी तो सैलरी की डेफिनेशन में आपने जो लफ्ज याद रखना है, द इम्पोर्टेंट वर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर, whenever there is a benefit from the employer to the employee, that benefit is included in the definition of salary. एवरेज रेट फॉर टर्मिनेशन बेनिफिट्स, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो रिटायर होते हैं या रिटायरमेंट किया, उनकी किसी जगह से गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि फर्ज किया एक एम्प्लॉई आपके पास आया, उसकी साल की सैलरी थी से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 लाख रुपए, वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के ऊपर उसको 25 लाख रुपए का से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ग्रेजुटी मिल गई, प्रोविडेंट फंड मिल गया, या कोई और टर्मिनेशन बेनिफिट मिल गया, या गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट मिल गई, और वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट जब उसकी 12 लाख की सैलरी में शामिल होगी, तो आपको ये पता है, आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो कि सैलरी के ऊपर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। स्लैब रेट्स का मतलब ये है कि 4 लाख की सैलरी पर या 6 लाख की सैलरी पर 0% है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 2% का रेट है, फिर और ऊपर जाए 5% का रेट है। इसी तरह ये रेट जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होती जाती है, टैक्स की स्लैब भी इंक्रीज होती जाती है, रेट इंक्रीज हो चला जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ या एम्प्लॉय की टर्मिनेशन हो गई, उसे गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट मिल गई, उसे कोई टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया, तो अब होगा ये कि एक तो वो रिटायर हो रहा है, वो जब टैक्सेबल टर्मिनेशन बेनिफिट उसकी नॉर्मल सैलरी में ऐड होगा, तो उसकी स्लैब रेट बहुत हाई चली जाएगी। 12 लाख सैलरी थी, 25 लाख रुपए का उसे टर्मिनेशन बेनिफिट मिला, टोटल 37 लाख रुपए हो गए, 3.7 मिलियन। अब ये 3.7 मिलियन के ऊपर अगर स्लैब रेट आप अप्लाई करेंगे करंट ईयर के, तो इसके ऊपर बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स आएगा। लॉ ने, गवर्नमेंट ने, क्राउन ने इस बात को रिकग्नाइज किया, और तो फिर क्राउन ने, गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि अच्छा भाई, अगर किसी को कोई टर्मिनेशन बेनिफिट मिलता है, अगर किसी को कोई गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट मिलती है, तो उन्हें कहा अच्छा यार, आपके पास ऑप्शन है कि आप बजाय इसके कि टर्मिनेशन बेनिफिट को करंट ईयर के रेट पर टैक्स के लिए ऑफर करें, आप इस टर्मिनेशन बेनिफिट को लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पर टैक्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट, मसलन से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक बंदे की सैलरी पिछले साल भी 4 लाख थी, उससे पिछले साल भी 4 लाख थी, उससे पिछले साल, यानी उसकी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में चलती आ रही है, और इस साल उसको टर्मिनेशन बेनिफिट की वजह से वो पहली दफा टैक्सेबल की कैटेगरी में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट लेगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे बंदे के लिए बेहतर क्या है कि वो ये प्लान कर ले, वो ये अपनी जो टैक्सेशन है टर्मिनेशन बेनिफिट की, वो बजाय इसके कि करंट ईयर के रेट पर उसे टैक्स के लिए ऑफर करे, उसके लिए बेहतर ये है कि उसे लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पर ऑफर करे। नाउ दिस इज समथिंग दैट आपको जब भी कोई आपके पास का क्लाइंट आए तो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता होगी तो आप उसके, वरना तो सारे लोग क्या करते हैं, वो इकट्ठा जो है वो सारा टैक्स में शामिल किया और उसके ऊपर टैक्स दे दिया, तो आपने अपने क्लाइंट को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाया जो लॉ में अलाउबल बेनिफिट है। मैं किसी ऐसे बेनिफिट की बात नहीं कर रहा विच इज नॉट अलाउबल इन द लॉ। So this is one of the benefit that you can extend to your client by informing him that look, you have received a hefty payment, a golden handshake payment or a termination benefit. So instead of offering it at the current year's rate of tax, you can offer it at last 3 years average rate of tax, which is likely to be considerably lower than the current year rates applicable. अच्छा, इसमें एक और भी चीज आपने ध्यान में रखनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इन सम रेयर सर्कमस्टेंसेस, मैंने अभी कुछ पिछले दिनों एक शख्स की रिटर्न बनाई और उसका ये था कि वो अभी रिटायर हुआ, यानी जुलाई में ही रिटायर हो गया। अब उसको लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट जो है वो ज्यादा पड़ रहे थे, और करंट ईयर में क्योंकि उसकी और कोई इनकम नहीं थी तो करंट ईयर का रेट उसे कम लग रहा था। ठीक है, तो फिर उस शख्स के लिए हमने किया ये कि उसे हमने करंट ईयर पे किया, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दी है। It is an option. It is a tax planning device available within the law that either you opt for taxation on the current year rates or either you opt for taxation on last 3 years average rate of tax.
So this is the kind of information if you have, you can provide a certain benefit to your client. इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करेंगे। आज का टाइम हमारा हाफ एन आवर मुकम्मल हो गया। हम इंशाल्लाह ताला इसी टर्मिनेशन बेनिफिट की एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सैलरी की सीरीज का पहला लेक्चर है और हम इंशाल्लाह ताला मजीद लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। सैलरी की सीरीज हम करेंगे, कुछ हमारे लगेंगे इसके अंदर 4-5 लेक्चर्स लगेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला जो जो बेनिफिट्स आप अपने सैलरीड इंडिविजुअल क्लाइंट्स को पहुंचा सकते हैं वो सारे के सारे हम इसमें कर सकते हैं। सर रिसर्च अलाउंस इज आल्सो टैक्सेबल नॉट? फवाद, इसमें फवाद ने क्वेश्चन पूछा है सर रिसर्च अलाउंस इज आल्सो टैक्सेबल नॉट? फवाद एक्चुअली आप देखें कि अभी जो हमने डिस्कशन की ना, हमने डिस्कशन में ये देखा कि कोर्ट ने भी डिस्कस किया और लॉ में भी डिस्कस किया, तो वहां पे अल्फाज लिखे हुए थे सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो रिसर्च अलाउंस मिल रहा है उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा और उससे पता है मसलन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मुझे एक रिसर्च अलाउंस मिलता है या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को रिसर्च पर रखते हैं एंड वी आस्क हिम कि भाई आपको ये रिसर्च अलाउंस मिलेगा, इस रिसर्च अलाउंस से आपने अपने इंटरनेट का बिल पे करना है ताकि आप गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकें, आपने जो लाइब्रेरीज में जाना है उनके आपने कार्ड बनवाने हैं, उनकी आपने पेमेंट्स करनी है। अब वो रिसर्च के लिए हमारे पास एम्प्लॉई है और वो ये सारा खर्चा इसी रिसर्च अलाउंस में से कर रहा है, वो उसका अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो इसका मतलब है ये रिसर्च अलाउंस टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। इट शुड इनफैक्ट इसको सैलरी की डेफिनेशन में नहीं शामिल होना चाहिए। जैसे जुडिशियल अलाउंस या स्पेशल जुडिशियल अलाउंस की हमने बात की, इसी तरह इस रिसर्च अलाउंस को सैलरी की डेफिनेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये करता हूं कि एक एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं और कहता हूं यार ये तुम्हारा 20,000 रुपए का रिसर्च अलाउंस है, जाओ मौज करो, जो मर्जी करो इस रिसर्च अलाउंस से। अच्छा, अब वो मैंने सिर्फ नाम रिसर्च अलाउंस रख दिया है, मैंने उसको एक्चुअल रिसर्च अलाउंस जो है किसी रिसर्च के एक्सपेंडिचर के लिए नहीं दे रहा। तो सिर्फ नाम रखने से वो रिसर्च अलाउंस टैक्सेबल या एग्जाम नहीं होगा, बल्कि उसके जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है उनको देखना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर जब मैं पढ़ाता हूँ ये टॉपिक तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई मेरा नाम शरीफ है, लेकिन सिर्फ नाम रखने से ये नहीं कहा जा सकता कि मैं शरीफ हूँ, ठीक है? मेरी हरकतें भी शरीफों वाली होनी चाहिए। इसी तरह जिस अलाउंस के लिए आप ये चाहते हैं कि वो सैलरी की डेफिनेशन में शामिल ना हो, उसके सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा कि ये अलाउंस, ये इसकी हरकतें भी ऐसी हैं कि वो सैलरी से एक्सक्लूड किया जा सके या ना एक्सक्लूड किया जा सके। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन फवाद। अच्छा जी, साकिबुल्ला ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर कैन वी टेक लोअर ऑफ फेयर वैल्यू रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बेनिफिट इन काइंड? साकिबुल्ला, ये जो क्वेश्चन है ना ये लॉ में एड्रेस्ड नहीं है कि लोअर लेंगे या हायर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये यूजुअली जनरली मार्केट में फेयर मार्केट रेंट चीजों का अवेलेबल नहीं होता और जनरल प्रैक्टिस जो है ना वो डेप्रिसिएशन को लेने की होती है। असल में इसको इस तरह से देखें कि क्योंकि एम्प्लॉयर जो है ना, जो एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट होगी वही एम्प्लॉय का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है? तो एम्प्लॉयर ने अगर एसी दिया ना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने एक एसी दे दिया, अब एम्प्लॉयर को उस एसी की कॉस्ट क्या आ रही है, उस एसी की एम्प्लॉयर वो कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा है यूजिंग अ डेप्रिसिएशन मेथड। वो डेप्रिसिएशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? डेप्रिसिएशन इज रिफ्लेक्टिंग द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। सो जनरली डेप्रिसिएशन शुड बी द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है? ये जो फेयर रेंट का या फेयर मार्केट रेंट का कंसेप्ट है, इट शुड अप्लाई वेयर डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, लॉ इसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं देता, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जनरली इट शुड बी डेप्रिसिएशन, and if depreciation is not available then we can look into fair market rent, but this is not a definite answer, as I would say, this is my personal opinion. कोई क्वेश्चन किसी का? और थैंक यू वेरी मच फवाद, साकिबुल्लाह एंड तलहा फॉर बीइंग पार्टिसिपेटिव। और कोई लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछ लें।
ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी हमारा जो आज का टॉपिक था सैलरीड इंडिविजुअल्स के हवाले से कि सैलरीड इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी विद इन द लॉ कैसे रिड्यूस की जा सकती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।